फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। एक दौर था जब क्रिकेट खेला जाता था सिर्फ और सिर्फ पैशन के लिए, मगर कुछ सालों बाद आज के दौर में क्रिकेट सिर्फ पैशन के लिए नहीं बट एक प्रोफेशन और ढेर सारा पैसा आ गया है मोटिवेशन के लिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी खेलते हैं क्रिकेट पैशन एंड जस्ट फॉर द लव ऑफ द गेम। जैसे यहाँ पर कुछ दिव्यांग क्रिकेटर्स जो आए हैं ट्राई सीरीज़ के लिए बिटवीन गुजरात, कर्नाटका एंड मुंबई, बांद्रा के MIG क्रिकेट ग्राउंड में। तो जानते हैं व्हाट मोटिवेट्स दीज दिव्यांग cricketers, the wheelchair cricketers, when it comes to playing this beautiful game. So I have Sagar with me from Karnataka right now, and Sagar is a very passionate cricketer. He used to play for his college before he met with an accident, but where he lost his leg, unfortunately. But Sagar, he's been playing for India. Yeah. He's been playing for Karnataka. What's cricket for you right now? क्या है cricket तुम्हारे लिए? No, cricket has given me a lot of confidence post-accident. To come out of my home. I was at home for six months, and out of that, seeing an interview on the TV saying that there is a wheelchair cricket happening. I went there. I played. I contacted the NGO that organized this, and post that from 2017, this has been my passion. And even before, it was my passion, but it gave me a lot of confidence, and there's a lot to learn in sports. So I would request everyone to come on the field and play sports. Especially to the person with disability, I would urge everyone to come out and please play. You can be someone who can be looked up to going forward, and we should set an example for our next generation. So I would urge everyone to come out and please play. What do you do, Sagar, apart from playing cricket? What is your profession? I work with a company called SignUp. So it's a software company. So I work there as an operations analyst, and also I'm associated with an NGO called Divyang Maitri Sports Academy. So I handle social media handles over there. So Sagar, was your dream? Did you ever dream of playing for India before you met with this accident? Because you look like a proper cricketer, somebody who knows more than a thing about cricket. Yeah, even I did, but due to some circumstances back home, we were not financially strong, so our parents couldn't send us to a coaching class, or I was not confident enough, to ask them that I wanted to be a cricketer. My mother wanted to, she wanted me to be as a doctor or an engineer, but destiny is what this is what it is. I think I was like cricket, and here I am playing wheelchair cricket at the highest level. At the highest level, yeah, that is one motivation, I guess. Yeah, that you were destined to play cricket for India. Yeah, so I think this is what they call destiny and manifestation. I've been dreaming to play cricket, but I'm playing it in a different form. But it's what it is. Cricket is what I dreamt, and I'm living my dream. What about your story? Like, what exactly happened that you lost your leg? How did it happen? So me and my friends, three of our friends, we went to a temple, and while riding back home in the bike, we were riding triple. So I was sitting at the back. So I would request everyone to please wear a helmet and don't triple ride. This is a sincere request from me. So while coming back to home, we met with an accident. Post multiple surgeries, I lost my left above knee. Yeah. Hard luck, but then that's destiny. But then you're living your dream right now of playing for India. Yeah, right? Yes. So I would request everyone to kindly wear a helmet. So this is not, I'm not wearing this helmet to tell you guys to wear a helmet. I genuinely feel that everyone has to wear a helmet. So kindly wear a helmet and save your life and your families. All the best, Sagar. Thank you so much. अच्छा दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ग्राउंड है सचिन तेंदुलकर का होम ग्राउंड, MIG क्रिकेट क्लब, जो आता है बांद्रा ईस्ट में। तो यहाँ पर इन दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए खेलना एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी मेमोरी, बहुत सारी मेमोरीज यहाँ से लेके जाएंगे ये 2 दिन के टूर्नामेंट में। बट दोस्तों आगे बात करते हैं, जानते हैं इनके लिए क्या है क्रिकेट। इन दिव्यांग क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट क्या है, क्या पैशन है, क्या मोटिवेशन है, और एग्जैक्टली कैसे ये अपना पैशन परस्यू करते हैं। क्या लगता है तेंदुलकर के होम ग्राउंड पे खेलना? लोगों का सपना ही रहता है, हमारा सपना सच हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। सचिन के होम ग्राउंड पे खेलना जी। और पेविलियन देखा आपने सचिन के नाम का, सचिन तेंदुलकर पेविलियन? जी देखा। क्या फील होता है?
शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को, इस फीलिंग को। इतना मतलब अच्छा महसूस होता है, एक मतलब प्राउड फील होता है कि हम इस स्टेज तक पहुँचे कि उनके नाम के सामने हम अपने आप को सामने परफॉर्म कर पाए, उनके सामने अपने आप को रख पाए। आप मुंबई के हैं? नहीं, कराड़। अगर मुंबई टीम से खेल रहा है हाँ, मुंबई टीम से खेल रहा हूँ। तो क्रिकेट आपके लिए क्या है बेसिकली? ऑक्सीजन जीने के लिए। क्रिकेट अगर क्रिकेट नहीं तो मैं नहीं। तो आपको मोटिवेट क्या करता है? मेरे लिए मोटिवेशन तो सबसे पहले फर्स्ट में आता है इंडियन आर्मी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे। अच्छा। तो अभी वो रिटायर हो चुके। और क्रिकेट खेलने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? धोनी। आपका गुड नेम क्या है? साहिल सैयद। साहिल सैयद। अच्छा, और क्रिकेट के अलावा क्या करते हैं आप? जी, मैं पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ। पावर लिफ्टिंग भी करते हैं? तो आप दिव्यांग के स्टेज पर कैसे पहुँचे, कब पहुँचे, कुछ बता सकते हैं? ये बचपन से स्पाइना बाइफिडा, अच्छा। एक फोड़ा होता है जो अपने स्पाइन में होता है पैदा होते ही। उस फोड़े में मतलब अपने ब्रेन की जो नर्व्स रहती है, ब्रेन की और पैर की, उस फोड़े के अंदर एक मतलब ऐसा ट्रैफिक बोलते हैं ना, नर्व्स का ट्रैफिक हो चुका था। तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि अगर इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 दिन लाइव रह सकता हूँ, उसके बाद मैं डेड हो जाऊँगा। तो गारंटी नहीं दिया था, और बोला कि अगर ऑपरेट करेंगे तो या तो मैं ब्रेन से चला जाऊँगा, जब मतिमंद बोलते हैं ना हिंदी में, वैसा हो जाऊँगा, या तो फिर अगर ऑपरेशन किया और सक्सेस हुआ तो पैर चले जाएंगे पर ब्रेन मेरा ठीक रहेगा। तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि पैर चले गए पर दिमाग मेरा सही सलामत रहे। तो क्रिकेट कैसे आ गया आपकी लाइफ में? ये मैं बचपन से देखता था क्रिकेट टीवी पे, तो एक जागा उम्मीद मतलब बोलते ना इच्छा जागी खेलने की। और जब खेलना स्टार्ट किया तो नीचे बैठ के खेलता था, पहले व्हीलचेयर पे नहीं खेलता था। तो एक जो उस खेल के प्रति जो प्यार उमड़ा ना अंदर से, और अंदर से ऐसा लगा कि नहीं मुझे ये खेलना है क्योंकि मैं खेल सकता हूँ। और उस समय काफ़ी मैं नीचे बैठ के मतलब नॉर्मल लोगों से खेलता था, तो खेलता था, उनकी अच्छी खासी बैंड बजाता था। अच्छा, हाँ, नॉर्मल लोगों क्या बल्लेबाजी करते थे आप? दोनों, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता था। अच्छा, बैटिंग लेफ्टी राइटी? राइटी। और बॉलिंग भी राइटी, स्पिन ऑफ स्पिन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। साथ अभय प्रताप सिंह जी हैं, जो स्क्वाड्रन लीडर अभय प्रताप सिंह जी अगर बोलूँगा, क्योंकि ये एयरफोर्स में रह चुके हैं एंड इस वक्त ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का, और मैं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया का प्रेसिडेंट भी हूँ, विच टेक्स केयर ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट ऑल ओवर इंडिया। ओह लवली। तो सर ये बताइए कि व्हीलचेयर क्रिकेट जो है या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट जो है, हाँ, उसके लिए मोटिवेशन ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रोफेशन तो नहीं है अभी इस वक्त ना मॉनिटरी Definitely. जैसे बाकी क्रिकेट है। तो डेफिनेटली हमारी कोशिश ये है कि कुछ डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स जो हैं वो इसको प्रोफेशन बना सकें, लेकिन जो इसकी सोच थी वो ये नहीं थी, वो उल्टी थी। बेसिकली सोच ये थी कि लोग क्रिकेट के बहाने से घर से निकलें। बहुत मुश्किल होता था डिफरेंटली एबल्ड लोगों को घर से निकालना, बिकॉज कुछ एक्सेसिबिलिटी है नहीं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है नहीं, स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो बहुत लोग थे जो निराश परेशान घर में ही रहते थे कि बाहर जाएँ किसके लिए, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट वगैरह वगैरह। तो एज अ रिहैबिलिटेशन टूल समझे आप इसे, कि वी स्टार्टेड क्रिकेट। जो भी जिन लोगों ने भी शुरू किया वो शुरू किया रिहैबिलिटेशन की तरह, कि क्रिकेट के नाम पे लोग बाहर आएंगे, आपस में मिलेंगे, और साथ ही साथ दुनिया उनको देखेगी, लोग उनको कहते देखेंगे खेलते हुए। और होता क्या है ना कि जब तक कि लोग देखेंगे नहीं, चाहे वो सरकारें हों, चाहे कॉर्पोरेट्स हों, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वो तब तक प्रॉब्लम समझेंगे नहीं। जितना ज़्यादा आप उनसे आपस में मिलेंगे, उनके तो यानी नॉर्मल लोगों के साथ मिलेंगे, रेगुलरली सड़क पे दिखेंगे, रेगुलरली मॉल्स में दिखेंगे, तभी आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। तो दैट वाज द रीज़न जिसके लिए एक्चुअली ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई थी। तो ये उल्टा है कि ग्राउंड में आने की वजह से जो हमारी बाकी प्रॉब्लम्स हैं वो दिखने लगती हैं, और वो दिखने की वजह से सॉल्यूशंस भी कहते हैं निकलते हैं। अब ये है कि वो ऑन द वे चलते चलते वो ऐसा हुआ कि ये पॉपुलर होने लगा, लोगों को अच्छा लगने लगा, वो नेशनल इंटरनेशनल वो सब चीज़ें भी हो गई। एंड धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट साइड कि हम भी जिस तरह से वीमेन क्रिकेट का इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ वो अलग खेलते थे, फिर बीसीसीआई को टेक ओवर किया, उनके एसोसिएशन को एक तरह से टेक ओवर किया, फिर पूरा अंदर ले लिया, एंड टुडे दे आर एट पार विद मेल प्लेयर्स। अभी रिसेंटली गए तो उनकी सैलरीज भी एट पार विद मेल प्लेयर्स कर दी गई हैं। तो अब वीमेन आईपीएल भी आ रहा है। सो सिमिलर ग्राउंड्स पे सिमिलर तरीके से ये भी हमारा कोशिश ये है कि इसी तरीके से ये भी तेज़ी से ग्रो करे।
बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत एनलाइटनिंग था आपका जो आपने जो भी कहा बताया हमको व्हील चेयर क्रिकेट को लेकर और इंडिविजुअल्स को लेकर जो मोटिवेशन रहता है जो एंजॉय करते हैं बेसिकली गेम करेक्ट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ बैठे इस वक्त RRR यानी राहुल रमेश रामूगढ़े, जो कि पायनियर है व्हीलचेयर क्रिकेट के, मुंबई में इस वक्त और टूर्नामेंट करा रहे हैं बिटवीन ट्राई सीरीज करा रहे हैं बिटवीन मुंबई, कर्नाटका एंड गुजरात एंड ही हिमसेल्फ इज़ अ क्रिकेटर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा राहुल, आपकी तो पहले बात तो ये मैं आपकी स्माइल पे बड़ा फिदा हूँ, इतनी ऑनेस्टी, इतना ब्यूटीफुल स्माइल एंड दैट स्पिरिट। तो क्रिकेट आपके लिए क्या है पहले ये मुझे बताइए, फिर बताइए आपकी कहानी हमें ब्रीफ में। यस, क्रिकेट तो सर लाइफ ही है, क्योंकि भले हम व्हीलचेयर पे तो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट लाइफ ही है और व्हीलचेयर क्रिकेट पैशन है हमारा। हमें 2017 से हम खेल रहे हैं, अभी अलग अलग टूर्नामेंट खेल चुके हैं, कुछ इंटरनेशनल है, अभी लोकल टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ये जो है ट्राई सीरीज़ हम अरेंज कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आपने कहा कर्नाटका, गुजरात और मुंबई की टूर्नामेंट है ये। और MIG क्लब जहाँ सचिन तेंदुलकर सर प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी इंडियन प्लेयर KL राहुल सर अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ के प्रैक्टिस, तो उस तरीके से बिग एक अच्छे ग्राउंड पे हमें खेलने मिल रहा है। सो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर अस। और इसके हम ट्राई कर रहे हैं कि लोग भी आए MIG है, क्लब है, तो उसका नाम देख के हमारा क्रिकेट देखने आए, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं कोहली वगैरह सब, उनको तो सब देखने आते हैं। अभी वुमेंस का IPL हो रहा है, वो भी लोग देखने जाएंगे, बट हम भी व्हीलचेयर पे खेल रहे हैं, तो हमें भी सपोर्ट करें, लोग आने चाहिए। इसके लिए हमारा मोटिव है कि यहाँ अरेंज करना मुंबई में, और इतने बड़े तरीके के कर पा रहे हैं, उसके लिए हम स्पॉन्सर्स के भी धन्यवाद देना चाहते हैं। राहुल, पर्सनली मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगा कि मतलब क्रिकेट कैसे परस्यू हुआ, बट उसके पहले आप क्या है आपकी लाइफ कैसी थी, आप क्या करते हैं एग्जैक्टली? ओके, सो बेसिकली मैं महाराष्ट्रन बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो स्कूलिंग डेज़ में मेरा स्विमिंग से नाता जुड़ गया। स्कूल में हमें पीरियड होता था एक स्विमिंग का, तो उससे स्पोर्ट्स में जुड़ गया, फिर उसको नेशनल लेवल पे परस्यू किया। तो वो स्विमिंग, पैरा स्विमिंग कंपटीशन के लिए ऑल ओवर इंडिया घूमते थे, तो वहाँ पता चला कि क्रिकेट भी होता है व्हीलचेयर पे। तो बचपन से मैं क्रिकेट खेलता, तभी मैं स्केटबोर्ड पे खेलता था क्रिकेट। सो तभी फिर जब पता चला कि व्हीलचेयर पे भी है, तो पहला व्हीलचेयर खरीदा, टेनिस बॉल से स्टार्ट किया, अच्छा लगा, फिर लेदर बॉल से स्टार्ट किया जो अभी हम खेलते वैसे। तो उस तरीके से जर्नी शुरू हुई, बट बाद में पता चला कि इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। तो राइट नाउ वी आर डूइंग, खेल भी रहे हैं, मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और सारा कुछ एक साथ कर रहे हैं। तो फुल टाइम तो है नहीं, वी वर्क ऑल्सो, मेरा घर से पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, बट मेरा मेजॉरिटी वर्क जो है मैं क्रिकेट को ही देता हूँ, और आई वॉन्ट टू परस्यू इट एज अ करियर इन फ्यूचर। एब्सोल्युटली, बट अपने कंडीशन के बारे में बताएंगे, वाज इट इनबॉर्न और व्हाट एग्जैक्टली करेक्ट। सो आई हैव अ बोथ लेग पोलियो। सो बचपन में जब बॉर्न हुआ था तब अच्छे से था लेग्स, बट आफ्टर 1 ईयर हाफ ईयर पोलियो हो गया, बुखार आया, उसमें इंजेक्ट किया डॉक्टर ने, तो उसमें मेरे बोथ लेग गॉट इफेक्टेड। सो आई कैंट स्टैंड एंड वॉक, सो आई हैव अ सेंसेशन एंड एवरीथिंग, बट आई कैंट स्टैंड एंड वॉक, दैट्स व्हाई आई यूज अ व्हीलचेयर। बट कुछ ऐसा मतलब एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? नहीं, मतलब अगर व्हीलचेयर पे नहीं होता तो पॉजिटिविटी आपका देखकर मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई भी रिग्रेट होगा। नहीं, मतलब व्हीलचेयर पे नहीं होता तो इंडिया किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट करना बड़ी बात है, तो वो मैं नहीं कर पाता। कि एबल बॉडी में होता तो शायद क्रिकेट खेलता, इंडिया खेल पाता, बट व्हीलचेयर पे हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इंडिया खेल पाया। मुंबई टीम जो नहीं थी, व्हीलचेयर की मुंबई टीम ही मुंबई में नहीं थी, तो वो फॉर्म कर पाया मैं। तो इस तरीके से ग्रोथ हुआ, आगे भी चलता रहे ऐसा लगे, तो रिग्रेट्स तो है नहीं, बस इस चीज़ को अच्छे से सपोर्ट आ जाए। सो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन टेक इट्स स्पोर्ट्स एज अ करियर, ये हो जाए तो वो थोड़ा सा जो रिग्रेट्स है वो भी नहीं है। एब्सोल्युटली, सच अ पॉजिटिव माइंड एंड सच अ पॉजिटिव क्रिकेटर आपको यहीं दिखेंगे। थैंक्स राहुल। थैंक यू सर। सो दोस्तों, ये थी हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट की स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा। ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए cricketnext.com, क्योंकि बॉम्बे और बाकी जगहों से ऐसी बहुत सारी इंस्पिरेशनल क्रिकेटिंग स्टोरीज़ मैं आपके पास लाऊंगा। ताउस रिजवी ज़रूर फॉलो करिए हमको इंस्टाग्राम पेज पे एज वेल। फॉर नाउ इट्स गुड बाय फ्रॉम मी। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।